Welcome, ladies and gentlemen, or bhaiyo or unke behno. I've got Vikram Sate with me today, and he's a magic freak. He loves to see magic, so I've got something in store for him. Okay, Please so start. Vikram, you've got to select one card out of the deck. Done. Yeah, and I want you to show it to the camera and everybody else sitting. Okay. Prithvi can see it. And you know the best part of got it? it. Even I can see the card, so it doesn't okay. matter. Yeah. Okay. So Don't I'm tell me gonna- this is the trick. No. So I want you to keep your hands like this, both your hands, okay? Okay. And I'm gonna take your card and place it in this hand. I Okay. want you to close it. Okay? Okay. Now I'm gonna take another card, which is gonna be my selection. Okay. Yeah. So mine is Joker. I'm gonna take Joker and just wave it across your hand, Okay. and then the magic happens with the brush. Okay. Open it. Wow. This is incredible, And man. see this. See this. See this. See this. Boss, can you do me a favor? Can you do me a favor? Can you tell me what it is? What's the point of doing magic then? No, then we can, figure out how to handle Delhi and get you the cup next time. That's totally on our talent, okay? There's no magic in That it. is outstanding. How the hell did you learn being a magician? I mean, double income क्या कि सुबह cricket, रात को magic. नहीं ऐसा कुछ नहीं, but I started learning magic tricks from England. So I had gone there after the Under-19 World Cup to play for a club over there, and the life was very lonely. I was staying with a teammate, and yeah, I wanted to break an ice with someone, and I thought this would be the perfect way to, start a conversation with someone. So I learned tricks, and suddenly it became a hobby for me. क्या बात है. So basically to meet interesting people, magic was the way to get into their lives. Yeah, and I was very reserved. I use jokes, sometimes they fail, but your tricks are too good, yeah. Yeah, thanks a lot. Yeah, it's been getting better day by day, so. You do it with the Delhi team as well? Yeah, I do it while traveling. When I see tired faces around, I just go and cheer them up by doing magic tricks. It's sometimes it works, sometimes it doesn't. People like him who don't enjoy. I do enjoy. It's not like that. Coming to you, he is talking about England. और मेरे को बहुत प्लेयर्स ने बताया कि जब पहली बार वो इंग्लैंड जाते हैं ना, Under-19, Under-14, whatever they go, वहाँ के बॉलिंग समझ जाती है, इवन काउंटी में, मगर बॉली नहीं समझती है. एंड हरभजन एंड वीरूज इंग्लिश स्टोरीज आर एपिक. समथिंग हैपेंड विद यू लाइक दैट? मैनचेस्टर स्पेशली एट एज ऑफ 12. बिकॉज इंग्लिश बहुत ही कच्चा था वो टाइम पे, 12 साल का था. फर्स्ट टाइम गया था मैंने, 12 years old. फिर वहाँ जाके ऐसा लग रहा था कोई अलग ही दुनिया में आ गया हूँ. प्रॉपर सिस्टम वाइज वहाँ पे चल रहा था. और तो वहाँ पे मैं 3-4 months स्कूल जा रहा था वहाँ पे, ऐसी एक एक्सपीरियंस लेने को. सो गया, बातें वो लोग कर रहे थे. पहले समझ में तो नहीं, ऑब्वियसली मेरे को इंग्लिश इतना आता नहीं था वो टाइम पे. तो यहाँ का एक्सेंट तो समझ में आ जाता है, बट वहाँ का एक्सेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल था. एग्जैक्टली. यहाँ पे बोलते हम हाय हाउ आर यू, वहाँ पे हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप है. यू ऑलराइट? You're right. You alright? You're at the Wait, that is more Australia, ना? No, that is English. इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लैंड भाषा. और आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं लोग. मतलब 2-3 weeks मैं सिर्फ ओके और यस में जवाब दिया उनको. So basically जैसे running between the wicket. यस, फूड यस. सो एक टाइम ऐसा आ गया तो उनको एक्शन करना पड़ रहा था. हाँ. तो इतना मतलब मैं डिफिकल्ट था. रन बनाता हूँ और रन खाता हूँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं करता हूँ. अच्छा, ये छोड़ो, हम लोग बात करेंगे आपके मेन स्किल के बारे में, एंड दैट्स नॉट क्रिकेट. आई थिंक दिस इंडियन टीम दैट वी आर सीइंग एट द मोमेंट इज पॉसिबली द बेस्ट डांसिंग टीम आई हैव एवर सीन सिंस द टाइम आई स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट. मीन्स मेरे ख्याल से वो जमाने में कोई भी अच्छा डांस नहीं करते था. तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण, नो चांस. एंड नाउ व्हेन यू गाइज पोस्ट योर वीडियोज, इट इज epic. And Prithvi Shaw, your reputation in Mumbai is that you are an unbelievable dancer. सीखा यानी घर पे कुछ सिखाया गया है? मैं डांसिंग क्लासेस जाता था स्कूल टाइम पे. Nice. मैं विरार में जब था वो टाइम पे जाता था डांसिंग क्लासेस. तो तब से मेरे को शौक था, मतलब म्यूजिक बजा कि अपने आप चलने लग जाते कभी कभी हाथ. गणपति विसर्जन वगैरह के क्लास के लिए जाता था क्या विरार में? नहीं, हिप हॉप क्लास ले नहीं जाता था. बट फिर अय्यर को देख के थोड़ा थोड़ा सीखा मुंबई में आके कि अय्यर कैसा मूव्स कर रहा है. तो फिर मेरे से अच्छा हो गया. बट बस कुछ भी बोलो, मुंबई में जिन्होंने शुरुआत की है वो एक तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करोगे ना तो अपने आप अपना स्किल्स अच्छा हो जाता है, बॉडी स्किल्स. और उसके बाद गणपति फेस्टिवल, यू कांट गेट अ बेटर प्लेटफॉर्म टू लर्न डांसिंग. यस यस राइट.
हाँ वो आई मीन वो ड्रम्स वगैरह जब बजते ना तो, और मेरे डैड थे कि नहीं, मतलब नहीं जाने का नाचने को। अच्छा, ऑपोजिशन फ्रॉम होम। हाँ मतलब डैड पहले अलाउ करते थे, बाद में फिर क्रिकेट वगैरह खेलना स्टार्ट किया। बोले ये सब क्यों कर रहा है, तेरे को क्या ज़रूरत है, चुपचाप ट्रक में बैठ और जा गणपति विसर्जन के लिए। और मैं सब देखता था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं सिर्फ देखता था वो लोग को। मैं डैड के सामने एक दिन रो दिया, डैड मेरे को प्लीज़ जाना है कैसे भी, तो भेज दिया। तो मैंने वो 3 साल का मिला के और डांस किया पूरे सेंटा क्रूज से जूहू तक। हम लोग को 3.5-4 घंटा लगा, 1 मिनट ब्रेक नहीं लेके पूरा 4 घंटे मैंने डांस किया। क्या बात है। अच्छा, वहाँ से फिटनेस आया। बोल सकते हैं। गणपति विसर्जन के लिए मेनली हम लोग सिर्फ 2 ही रीजन के लिए जाते हैं, एक डांस और एक वड़ा पाव। हाँ, मैं तो उसके लिए जाता था। एंड फेवरेट गणपति स्टेप मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगता है ना, जो कोई लोग एकदम आफ्टर 5 और 6 ऑरेंज जूस के बाद जो एक उनका मोमेंटम आता है, वो है ना जो ऐसे करते हैं। वो अलग ही नाचता है, वो बंदा ग्रुप में नहीं नाचेगा। ये ग्रुप है। नहीं, वो उधर तो ठीक है। हाँ, धत्तड़ 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 धत्तड़। उसके बाद फिर चांद दिखा दे ऐसा, वो देख वो देख वो देख। और फिर वो सब लोग देखेगा धत्तड़ धत्तड़ धत्तड़। व्हाट इज योर फेवरेट स्टेप? गणपति में वैसे तो हाथ दोनों ऊपर ही रहते, फिर चलते रहता है ऐसा। हाँ, मेरा भी वही है, ये वाला। And now you played with all the Indian greats. Just now who are playing cricket for India. सबके पास अभी विराट कोहली की स्टोरी भी होगी। Any interesting कोहली स्टोरी? वो मेरे को रवि अश्विन ने बताया कि कोहली का प्रॉब्लम क्या है, when you are batting with him, रबाडा अश्विन को बॉलिंग डाल रहा है और विराट कोहली रबाडा का कम ऑन कर रहे, बोले भाई मत कर उसको, बैटिंग मैं कर रहा हूँ, आएगा जोर से फिर। क्रिकेट वाला तो नहीं है, बट ऐसे ही हम इंग्लैंड में थे जब मुझे कॉल आया था इंडिया के लिए, तो बैटिंग हो गया था और विराट भाई भी आ रहे थे। तो विराट भाई, मैं ऐसे कुछ पानी वगैरह पी रहे थे, तो विराट भाई ने बोला कि ट्राई कर रहे थे वो मराठी में बोलने के लिए, बिकॉज उनको पता मैं हाफ महाराष्ट्र हूँ, तो ट्राई कर रहे थे मराठी में। बहुत फनी वे था, उनको आ नहीं रहा था बट वो ट्राई कर रहे थे। तो बोल रहे थे दहीहंडी फोड़ला। दहीहंडी फोड़ला मेरे को समझ में नहीं आया, तो अच्छा बाद में फिर मेरे को समझा दहीहंडी की बात कर रहे। अरे फोड़ला फोड़ला ते वो गोल गोल रे नारियल वाला। बोला अच्छा दहीहंडी। तो एक फिर उसके बाद वो बोल रहे थे एक डांस स्टेप कर रहे थे, कुंबाली ट्रांस, मेरे को पता ही रहेगा। कुंबाली ट्रांस में एक स्टेप है जो हम लोग करते हैं, तो उन्होंने देखा रहेगा वो वीडियो। तो ये क्या होता क्या होता थे हेलो, जो मराठी जब बात करते ना, इज टू फनी। Superb. And he's also a very good dancer, yeah? Yeah, he dances really well. So it comes from the बहुत अच्छा captain dancer also. And what about you? Any Kohli story? अरे रोहित शर्मा is your friend. Rohit Sharma is a character, forgetful, and the way he talks, when I see him, I feel happy. क्या कर रहा है यार? Rohit Sharma, so at the start, he never used to talk to me that much, but once you start going out with him for dinners and all, then he opens up and जिसको वो एकदम क्लोज समझता है ना, उसका मजाक उड़ाता है, उसका वो ऐसा पर्सनालिटी है। तो मैं I'll tell you one story. When we were in Australia, मेलबर्न में थे हम लोग, मैं बाहर डिनर को गया था और बहुत ठंडी था, एंड इट वाज पोरिंग एज वेल लिटिल बिट। तो मैंने एक रेड कलर का जैकेट पहना था, बहुत लंबा था, वो कार्डिगन टाइप था, जैकेट भी नहीं बोल सकते, और ऐसा वो रहता ना हुड टाइप, ऐसा पूरा कवर कैप वो था, और फुल कवर्ड था मैं एकदम, शूज वूज पहन के। डिनर से आया एंड माई रूम वॉज राइट ऑपोजिट टू द लिफ्ट, सो आई एग्जिटेड द लिफ्ट। आई वॉज as soon as I was going inside my room, I saw Rohit coming from there. So I told him, रोहित भाई कल 2 टिकट्स से मुझे मैच का मिल पाएगा, और 2-3 प्लेयर्स भी थे आजू बाजू में। तो उसने बोला कि हाँ वो ठीक है, बट ये अंडरटेकर बन के किधर अंडरटेकर बोला ना मेरे को, मैं भी हंसने को लगा, उधर सब लोग हंस रहे थे आसपास। Oh God, too funny. That is an epic story. I can visualize the scene. And then you would have said to somebody. Achha, now let's talk about something that you've done recently. Captain of Delhi Capitals. You know, captaincy in IPL is a different ball game altogether. You know, बहुत टाइप के प्रेशर होते हैं। आपके तो 2 सासू माँ हैं, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, फिर बाकी सारे प्लेयर्स हैं, फिर आपका छोटा भाई भी खेलता है आपके साथ। बट विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर, एंड फिर न्यू ओनर्स भी हैं, वो भी थोड़े एंशियस रहेंगे। मैं होता आपकी जगह तो मैं दिल्ली से बम्बई आके आराम से बैठ जाता। You managed it and led the side extremely well.
Must be nervous initially, na? Yeah, I was very nervous. So my first thought was to gain the trust of everybody in the team and try to stay as calm as possible, because I've seen many captains in the IPL, they just lose their temper and suddenly they show a lot of emotions. So मेरा ऐसा था thinking कि मैं सबको equally treat करूँगा, ना कोई बड़ा player है ना छोटा player है, और जब वो trust when you gain, automatically you get the respect as well. Let me tell you about one incident which took place recently against Chennai Super Kings. Not Chennai Super Kings, sorry, Sunrisers Hyderabad. Yeah. So we went for the toss. Sanjay Manjrekar, he was the interviewer at that time. So I was so anxious and very enthusiastic at that time. Straight away match खेलना है मुझे. पहले time qualify हो गए हम लोग as a team. तो as soon as he took my name, Shreyas Iyer standing beside me, I flipped the coin. And everyone started catching it. नहीं अभी गिरना all नहीं three of us, हम लोग ऐसा coin पकड़ने आए थे कि मैंने अच्छा उसने बोला भी नहीं था अभी कुछ. हाँ श्रेयस अय्यर बोला, मैं बोला कि चलो टॉस का टाइम खत्म करो. नहीं ये याद कर रहा था कौन बाहर है, किसकी जगह कौन अंदर he was preparing for the interview. इंटरव्यू. हाँ अच्छा तो उसमें आपने कर दिया खत्म कर दिया मैंने. And everybody I remember was running behind the coin. So that is real nervousness. Nervousness as well as. कितना time लगा to recover from this nervousness and then go and say कि अब तू इधर खड़ा रहे, अब तू इधर खड़ा. रबाडा को कुछ बात how did you handle Rabada? Rabada was super easy to handle because he knew what he was doing. He had his plan in his mind and he was executing in almost every game. That super over. Yeah. Did you manage him or he managed you? What was the conversation? Super over, we just had a chat before the super over. I asked our bowling coach James Hopes that, no, he came to me and he asked who's going to bowl the super over. Right? So I said, obviously Rabada because he's the best bowler in the team. So yeah, Rabada and we have a chat. We had a chat before the game. I asked him, what are you going to do? Because Russell and DK, they are going to come into bat for sure. So Rabada said, first ball, I'm going to go for Yorker. Second ball, Yorker. Third ball, Yorker. Then मैंने बोला, okay, fourth, fifth and sixth, I know what you're going to do. So yeah, so he was very confident on what he was saying. So I didn't have to do much. I just went and stood in the boundary line and do my job. That's it. Awesome. But what an over, yaar. What an over. Yeah. Epic over. That gave us a good momentum in the tournament, to be honest. Absolutely. I mean, it changed the game. People looked at you differently, so it was a special moment. Yeah. Now talking about Prithvi Shaw. Prithvi Shaw क्या करते हैं पता है? ऐसे एक 15 दिन क्रिकेट खेलते हैं, फिर एक पोस्ट डाल देते हैं with Sachin Tendulkar. हमारी जब बात हो रही है and the whole world is thinking कि Prithvi Shaw, Sachin Tendulkar major discussion. Again 15 days कुछ 100-200 इधर-उधर मर के again वो फोटो आता है. डिनर करते हुए एक साथ. Exactly. What is the conversation? कुछ बताओ, कुछ interesting story. स्टार्टिंग से बताओ तो फर्स्ट टाइम मैं सर को मिला था when I was 8 year old. 8 साल का. I used to play for MIG cricket club. So Sachin sir also used to come there and bat. तो पहले तो सिर्फ मैं देखता था obviously, वहाँ पे खड़े रह के बॉल पकड़ो. तो प्रशांत शेट्टी सर जो है मेरे भी कोच है, तो उन्होंने सचिन सर से इंट्रोड्यूस कराया मेरा कि ऐसा ऐसा है. तो सचिन सर चले गए, हाथ मिलाए, और मेरे पास तभी फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोटो ले लूँ कुछ. तो सर चले गए और फिर सर ने ऊपर से वो मेरा बैटिंग देख रहे थे. ये मेरे को कब पता चला पता है? अभी मैं IPL के टाइम सर के साथ डिनर कर रहा था, तभी सर ने बताया. अच्छा. कि मैं भले ही चले गया था बट मैं तेरे को देख रहा था ऊपर से. वाह. मैं भी एकदम ये हो गया, अरे सर ने तभी नहीं बताया, अभी 10 साल बाद बता रहे आप ये चीज़. हाँ तो फिर उसके बाद सचिन सर ने मेरे को एक बैट दिया था SG का बैट दिया, और मैं वो 3 साल उसके साथ खेला. कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी होने का तो मैं बैट पे कुछ भी होने का तो मैं ट्राई करने का, यार नहीं कुछ होना नहीं चाहिए बैट को. तो 3 साल वो बैट से खेला और मैंने काफ़ी रन्स बनाए, काफ़ी अच्छा खासा नाम हो गया वहाँ पे. तो जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 546, तो एक फंक्शन हुआ था MCA में, तो सचिन सर ने अवार्ड दिया था. तो सचिन सर कुछ बात कर रहे थे मेरे से, कुछ बोल रहे थे, लेकिन ना मेरा ध्यान था, मेरा बैट टूट गया, मेरे को दूसरा बैट चाहिए. So basically तेंदुलकर को बैट सप्लायर बना दिया. नहीं मतलब बट मैंने इसका ही नहीं, ऐसे बहुत प्लेयर्स लोग का देखा है. अरे शाहिद अफरीदी को तेंदुलकर ने बैट दिया और उन्हीं मेड दिस फास्टेस्ट 100 यार. और सब लोग को और एक बैट चाहिए. अगर वो
अलग ही लेवल का लक लाते हैं उनके लिए, ये तो देखा है मैंने। वो आई मीन वो रहता है ना कि यार ये बैट से दिया सचिन सर ने मेरे को, नो ब्लेस हो गया एकदम। उसमें नॉट ओनली बैट है, उसमें इमोशन है, उसमें मोटिवेशन है, पैकेज है ये। वो शेप है ना, हाँ। एक बार सेट होता है वापस जाके वही शेप बनाना है उनको बैट का, ओह, तो अपना खुद का शेप छोड़ देते हैं, क्या बात है, क्या वो बात शेप बनाते हैं। एंड देन तो मांगा आपने उनको हाँ मैंने डायरेक्ट? हाँ, और कहाँ हम लोग स्टेज पे ही खड़े थे, ट्रॉफी लेके ऐसे बात कर रहे थे, और मेरे दिमाग में बैट ही चल रहा था, बैट चल रहा था, कभी सर रुकेंगे, मैं बैट कभी जा, तो लास्ट में सर ने पूछा कुछ चाहिए, मैं फटक से निकल गया बैट, सर बैट चाहिए। अभी सचिन सर ने कभी मना नहीं किया था, ठीक है दे दूंगा आके। उस बैट से कितने रन बनाए? काफ़ी रन मिले उस बैट से भी। तो अब समझ गया, आप उनको बैट लेने के लिए मिलते हो। नहीं ऐसी बात सर आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड दिस थिंग, आई एम कमिंग, इफ यू कैन कीप इट रेडी सर। दैट इज एपिक। बट बैट डिगर। नाइस। मैं लकी मानता था, आई मीन मेरे को जब भी बैट दिए उन्होंने, मैंने इतने रन्स बनाए स्कूल क्रिकेट्स में 16 वगैरह के मैचेस में, तो मैं सोचता था सर से एक और बैट लेके और 3 साल अच्छे रन हो जाएंगे। नाइस। I'm sure Shreyas, you have an interesting Tendulkar story, or for that matter interactions with Rahul Dravid. कुछ राहुल द्रविड़ के साथ किस्सा हुआ है राहुल या सिर्फ राहुल द्रविड़ के साथ ओनली एनालिसिस की बातें होती है? फर्स्टली मुझे तो जब भी बात करते हैं ना, सिर्फ ऐसा सुनने का मन करता है, तो उनका जो भी मीटिंग्स होते हैं मैच के पहले मैच के बाद, जिस हिसाब से कंडक्ट्स, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिलता है उनसे, बिकॉज हिज इंटेलेक्चुअल इज सो गुड एंड आई हैव सीन एवरीबडी sitting in his meeting and focusing very strongly. So he's really good in man management. At first we used to be very afraid of him because you know वो image, हाँ वो इमेज क्रिएट हो जाता है, अरे राहुल द्रविड़ पहला, फिर उनका स्टैट्स देखते हैं, उसके सामने हम लोग का स्टैट्स इधर से बट वो मीटिंग में कब इनसिक्योर फील हो जाता है। एग्जैक्टली, बट but he has a great sense of humor, हाँ वो है बहुत, मगर और इतना इमेज बना है कि नो ऐसे ऐसे बैटिंग सीरियस इमेज, तो ऐसा लगता है या तो डर लगता है। बट यू प्लेड विद सो मेनी क्रिकेटर्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे लास्ट सीजन में एवरीबडी हैड अ हार्दिक पांड्या स्टोरी, एंड यू नो आई वाज ऑलवेज वंडरिंग दैट ऐसा हमेशा सहवाग की स्टोरी सबके पास है, रवि अश्विन के पास है, सचिन तेंदुलकर के पास है, सबके पास है। आई एम श्योर यू हैव समबडी इन योर क्रिकेटिंग लाइफ जिसकी स्टोरी बताने में आपको मजा आएगा। बनाने में नहीं, ये हुआ है, अच्छा शार्दुल ठाकुर के साथ हुआ है। कैरेक्टर। तो मेरा फर्स्ट ईयर था मुंबई के लिए, विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे हम लोग अहमदाबाद में। तो वी वर प्लेइंग अगेंस्ट सौराष्ट्र, वी नीडेड सम 4 runs to win in the last over and we only had 2 wickets in hand, and Shardul was batting at that time, he was batting around 30, okay, and 4 runs, और उसके बाद दोनों बैट्समैन अंधे, तो शार्दुल ठाकुर 30 पे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली अब लोग एंटिसिपेट करेंगे कि ये जिताने ही वाला है मैच। तो पहले ही बोला उड़ाया इसने कौवा ऊपर लॉन्ग ऑन में, कैच छोड़ दिया उसने, लॉन्ग ऑन वाले ने 2 भागा, और फिर उसके बाद मैच जीते हम लोग। फिर शार्दुल को बेचारे, शार्दुल तूने हम लोग को ऑलमोस्ट डरा ही दिया था, वो जब भी ऊपर मारा तो फिर वो आके बोलता अरे पागल है क्या तू, मेरे को पता था वो कैच छोड़ेगा। मेरे को पता था वो कैच छोड़ेगा और मैं 2 रन भागूंगा। और ऐसा एक ही टाइम नहीं, ऐसा बहुत सारे किस्से, पर अभी टाइम मैं भी एक बताता हूँ उसका। एक मेरा डेब्यू सीजन रणजी ट्रॉफी का, हम फाइनल्स खेल रहे थे, इंदौर में था, गुजरात के साथ। तो ऑफ स्पिनर बॉलिंग डाल रहा था, शार्दुल बैटिंग को गया, विकेट्स गए थे, बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स जा रहे थे, तो शार्दुल को बोला था थोड़ा आराम से खेलना, 3-4 और मेडन गया, सिंगल वगैरह भी चलेगा, है ना, ज़्यादा रिस्क मत लेना। सो शार्दुल गया, पहला बॉल बीट हुआ, दूसरा बॉल भी मिस हो गया। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, तीसरा बॉल स्टेप आउट होके मिड ऑफ के हाथ में अंदर आया। चंदू सर कोच थे हमारे, पूछे काय केलं से, सर तेना मी सिंगल काढायला गेलो। मैं सिंगल लेने गया, इतना जोर से मारा था उसने, इतना जोर से मारा, मैं सिंगल लेने गया सर। वो एक्चुअली नीचे से ही मारा था, वो बैट के बीचों बीच लग गया ना, तो वहां तक पहुंच गया, नहीं तो जाता नहीं था सर। लेजेंड है शार्दुल ठाकुर। उसका कॉन्फिडेंस
different level. Now, Shreyas, let's talk about your batting performances. One that stands out is that 200 against Australia in a domestic game. And years back, there was another gentleman called Sachin Tendulkar who scored a 200 in a domestic game against Australia. And life changed from then onwards. Australia lost, and something similar happened this time as well. I'm sure batting against Australia and giving 200 to them, कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा, क्योंकि वो लोग greetings देते ही हैं जब बैट्समैन आते हैं अंदर. हाँ हुआ तो सही, but let me take you from the start. So as soon as I went into bat, first ball Nathan Lyon he bowled, and I was confident that I would take him on for 6, and it happened. He bowled a slow flighted delivery, and I went over mid on, for 6. Chagdi. Second ball 4. So after that happened, Matthew Wade from behind, he was thinking, I knew that something this was going to happen. Matthew Wade. So I didn't respond because I thought that, I haven't scored a 50 yet. So let me keep quiet, because I also love talking when I get sledges and all. So I waited. When I crossed 50, I reached 80. Warner started chirping from the back. He was standing in the slips. He was saying, oh, we've got 2 IPL captains over here. He's trying to impress them. Because I was almost slogging every ball of the off spinner, whichever bowler was coming on. So he was saying he's trying to impress all the captains. Then Nathan Lyon also said something in the non-striker end. I was like, why don't you do your job? I'm doing my job. I'm really enjoying. Why don't you also start enjoying? So he got pissed off after that, and he kept quiet. Then got 200. Then everybody kept quiet, said a word. But after the game, they started applauding. They came to me, shook my hand. That's the good thing about Australians. Yeah. वो अंदर बैंड बजाते हैं, बाद में उनको So they leave it on the ground, and off the field they are really good. Which is good. So he gives it back to the Aussies while he is batting. आपका क्या philosophy है sledging का? स्लेजिंग मेरा थोड़ा अलग टाइप का है. आई मीन मैं खुद के ही बॉलर्स को करता हूँ कभी कभी. जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि मतलब की बैटिंग कर रहा था मैं. सो द विकेट वाजंट दैट गुड. सो कटर्स वगैरह जब डाल रहे थे वो लोग, तो रफ हो जाता है, स्पाइक वगैरह वो सब हो जाता है. तो वहाँ से बॉल उड़ रहा था काफ़ी. तो मैंने सोचा क्या करूँ, इनको बोल भी नहीं सकता, ऐसे भी नहीं बोल सकता यार तू मेरे को डाल अच्छे से. ऐसा कटर्स वगैरह क्या डाल रहा है. और वो टाइम पे मतलब हम लोग T20 वगैरह भी नहीं था कुछ कटर्स डालने का, रेड बॉल से खेल रहे थे. सो आई वाज लाइक क्या बोलूँ. तो आइडिया आया दिमाग में कि इसी को ही उसके ऊपर ही डाल देता हूँ सब. तो इसके थोड़ा धीरे लग रहा है तू आज. तो वो भी बोल रहा है क्यों, ये थोड़ा लग रहा है यार, मतलब तेरा लास्ट मंथ जब तू डाल रहा था तभी क्विक था, कुछ हो गया है क्या? कुछ हुआ रहेगा मेरे को लग रहा है, थोड़ा स्लो लग रहा है. तो वो भी एकदम ये हो गया, ईगो. हाँ एकदम ये हो गया कि यार क्या हो गया, मेरा कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ. शायद लग रहा है मेरे को इतना जोर से नहीं आ रहा तेरा पहले जैसे आ रहा था. तो वो भी एकदम जोश में बाद में आके मुझे चाहिए था मेरे बैट पे अच्छे से आया. नाइस. तो माइंड गेम्स खेल रहा है. बट आपने कभी मैच शुरू है एज अ फील्डर दिया है किसको? हाँ. जब भी पता चलता है you've got nothing to lose. गो फॉर इट. मैं एक तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सिली पॉइंट पे बैठा था, अंडर 16 का स्टेट मैच खेल रहा था. आई लाइक दिस, सिली पॉइंट पे बैठा था. अच्छा, मुझे कंटिन्यू करूंगा स्टोरी. इसके पहले जब मेरे को टेस्ट डेब्यू, जब मेरे को कैप दिया था, तो केएल और पुजारा ने मेरे को हेलमेट और गार्ड भी दिया था साथ में. अनबिलीवेबल. मुझे कल मयंक अग्रवाल ने बताया कि पुजारा ने एग्जैक्टली उसके साथ ये किया. ये इंडियन टीम का क्या स्ट्रेटजी है क्या? नया बंदा आया, हेलमेट लेके पहुंच जाओ. केएल ने हेलमेट दिया, पुजारा गार्ड और शिम्पेट दे रहा. मैं समझ गया अभी ये लोग का जॉब खत्म, वहाँ पे हमको बैठना है. क्या प्यार है नए प्लेयर से. बट हाँ, बली चढ़ाना. एग्जैक्टली. तो हाँ 16 स्टेट मैच खेला था अगेंस्ट महाराष्ट्र. तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ. अब सिली पॉइंट पे इसलिए बैठे, कोई डिफेंस कर रहा है बंदा, चांसेस हो. बट दिस गाय ही वाज हिटिंग लाइक ऑलमोस्ट एवरी बॉल, ही वाज जस्ट स्लॉगिंग. एंड आई वाज स्कैर्ड. आई वाज लाइक 13-year-old किड दैट टाइम. तो मैंने बोला क्या करूँ, एक भी डिफेंस नहीं कर रहा है. कैप्टन वाज लाइक नो, बी देयर. वाज लाइक फाइन ओके. तो ये मार रहा है, मैं उसका एग्रेशन देख रहा हूँ. मार के ना एक रहता है, मैंने मारा है ऐसा. तो मैंने थोड़ा सा चावी दिया. आई वाज लाइक इतना लंबा नहीं मार रहा है. मैं थोड़ा लंबा मारा था इस तरह से.
तो विकेट कीपर से मैं ऐसी बात कर रहा था उसके बारे में, मेरे बारे में। मेरा उधर तक गया था ना, इसका उधर तक नहीं जा रहा है। तो एक रहता ना, तो उसको भी लगा यार कि दिखाना पड़ेगा। मारा और सीधा कौवा। बेसिकली सर ईगो पे खेलते हैं। ईगो वेल डन। ईगो आ गया उस पे। Thank you for the wonderful stories. We've checked your mental strength on the show. Now we want to check your physical strength. Last season में hammer game में रोहित शर्मा ने तोड़ दिया. It's like serious, out of the park. Let's see if the young Mumbai boys can also break his record. चले? चलो, Let's go. here is the hammer game, and because you're a junior of the lot, you'll have to take a helmet and And I'll go first. helmet and shin pads. Yeah. I'll take all the pressure first. Yes. Important. Opening batsman, boss. Come on, shabash. Come Ego on, पे है quickly, ये. core Come tight, glutes tight, squeeze in, and boom. Nice. Nice. Timing. Nice. Well done. Come on, come on, come on, come on, come on. 9:21. Well done, yaar. Broke your previous record. Records are being broken here. Well done. Shabash. डर Come रहा on, है shabash, यार। shabash. Oh, killer. ये अगर 1000 के ऊपर नहीं गया ना, Shabash, shabash, shabash. Come on, Shreyas. No problem. Shabash, shabash, shabash. Shabash. 9:41. Well done, well done। 1000 के ऊपर जाना चाहिए था। Outstanding. Outstanding. As you know, it's a show is called What the Duck. So we celebrate the duck on this show. Okay. So we are going to check your ability. तेरा history में अच्छा नहीं था, drawing में अच्छा ही था ना. So we are going to check the ability to draw the duck. Shreyas, you were inquiring about Picasso and Leonardo da Vinci. Obviously, you're inspired by great artists. So let's go and draw the duck. एडवांटेज पृथ्वी को है कि स्कूल से अभी रिसेंटली निकला है. अरे श्रेयस, वेल डन यार, शाबाश. ओ वेरी गुड पृथ्वी यार, शाबाश. नाइस, वेल डन यार श्रेयस, शाबाश. नाइस नाइस. वेल डन जेंटलमैन. कुछ भी करो लाइफ में, डक स्कोर मत करना बस.